जो को इंचार्ज हैं, तेलंगाना से आते हैं, को इंचार्ज है, वो भी आज इस मौके पर उपस्थित हैं। मैं पहले आग्रह करूंगा श्री एल मुरुगन जी से कि वो थोड़ा परिचय भी दे दें और थोड़ी जो भी आपको अपनी बात रखें। Respected Sri Arvind Menon ji, Sudhakar Reddy ji, and our national spokesperson Sri Jafar ji, our MLA Vijay Dharani ji, Namaskar to you all. Today I hearty welcome to our Vijay Dharani ji to BJP. She is from Kanyakumari Parliamentary Constituency and Kanyakumari District. She is an MLA continuously 3 times in the Vilavangodu constituency. She is a senior leader in Congress party. She came to BJP, and our respected Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's development work. Now people are witnessing all over the Tamil Nadu, all over the country and all over the Tamil Nadu. Our party is very fastly growing there. Our state president Annamalai ji Atra is taking part. And last week here 17 ex-MLAs and ex-MP joined a party in this same place. So today the people from Tamil Nadu, various sectors, they are coming forward to joining and strengthening the BJP and strengthening the hands of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. So I welcome our Akka Vijay Dharani to Bharatiya Janata Party. Thank you very much. Thank you, El Murugan ji. And I would now request Vijay Dharani ji to show her letter where she has made the resignation and also speak something on this occasion, a few words to you all. Thank you. First letter cut. She has tweeted this letter and from her handle, and now she has also mailed this letter to the President of Indian National Congress. Just for your information. Respected all the members, Minister, our Arvind ji, Sudhakar ji, and Jafar ji, and Honorable Minister, Sri Murugan ji, and my dear friends of the Indian media and the international media, and our Tamil Nadu media. I'm really happy that every one of you are here helping a woman to come up the ladder. I'm really happy that I'm transforming myself to another national party, particularly. I was in the Indian National Congress for several years from my childhood. I have never shifted party all my life. And this is the first time I've taken a decision to shift my party for various reasons. I might have had some difficulties, definitely. You will be knowing about all those. But past is past. But now I really feel that under the honorable leadership of our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, there are a lot of great things happening to our country. Our internationally, our country is in such high profile, and very important is the people of the country also are quite happy with various schemes of the present government. Particularly, I'm really sometimes worried that good schemes of the Government of India presently now, like the ration scheme and certain other schemes, are not being promoted or even considered in states like Tamil Nadu, West Bengal. In these states, these are not being accepted at all. Because of that, people are being denied some good. So such things have to be definitely considered
by such states, our states. So it needs a strong persuasion in such states that the national party, particularly Bharatiya Janata Party, should be more strengthened. And as such, now presently our state leader and president, Sri Annamalaji, is doing a great job, and he is doing his Padayatra, and particularly there is going to be a real transformation of the party in Tamil Nadu, and I will be also joining them in the process to strengthen the party. And particularly, I strongly feel that women need a more focus, and that is being given by the Bharatiya Janata Party. That I really appreciate. More number of MPs are there and more number of MLAs are there. In the elected process, Bharatiya Janata Party encourages women into the process beyond bringing the women reservation bill and enacting it in the parliament. And more so, they will also be implementing it shortly. That's what the Honorable Prime Minister has stated. Now, I strongly feel that women leaders are more important to the country. And in states like Tamil Nadu, definitely women leaders are to be considered in the welfare of women. So therefore, the promotion of Bharatiya Janata Party, of people like us into the party system, I'm overwhelmingly happy about it, and I accept to work within the party with utmost loyalty. And I strongly feel I'm a person of loyalty, and now is time that leadership of Modi ji is very important to this country. So henceforth, under the honorable leadership of Modi ji and in the presence of our minister and the party president, Sri Nadda ji, I strongly feel that people like me can do work in our state and will be definitely of some use to the people of the country. Thank you so much. Thank you, Vijaydharini ji. And I would request my friends from media that please stay put, because there is a press conference will be followed by this. I think press conference will happen. Thank you. तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही थी, जहां पर आपको बता दें कि तमिलनाडु की कांग्रेस एमएलए विजय धारणी ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, जहां पर राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान विजय धारणी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं की तमाम तारीफ वो करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश के अंदर एक मजबूत पार्टी है। साथ ही महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी अपना सीधा फोकस रखती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला नेता होना जरूरी है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां पर आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को इस वक्त निरस्त किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अगले 6 महीने के अंदर ही पुनः परीक्षा कराने के भी आदेश इस वक्त दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दिशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर यह ऐलान किया गया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? पुलिस भर्ती परीक्षा इस वक्त रद्द कर दी गई है यूपी के अंदर। जी बिल्कुल, पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसके लिए 6 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न उठ रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पे कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। इसकी जांच एसटीएफ को दे दी गई है और जो अपराधी हैं, जो इन अराजक तत्व इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले तमाम सारे 150 से ज्यादा लोग एसटीएफ की कार्रवाई में उस दिन पकड़े गए थे 17 और 18 तारीख को। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी गैंग इसके पीछे संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो परीक्षार्थी इसमें भाग लिए थे उनको जो 6 माह के अंदर परीक्षा होगी
किसी भी प्रकार का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। ये परीक्षाएं फिर से दोबारा निःशुल्क कराई जाएंगी। ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार से अगर कोई सवाल उठाता है किसी भी परीक्षा पे तो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने इस पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्देश दिया है और 6 माह में फिर से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जी विकास, निर्देश तो दिए गए लेकिन जांच कैसे हुई? क्योंकि देखिए हाल ही में ये पूरा जो लोक परीक्षा कानून है ये भी हाल ही में बना है और उसके बाद में अगर इस तरीके से परीक्षा लीक हो रही है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अपने आप में खड़े करता है। जी बिल्कुल, तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे जो अराजक तत्व है वो हमने देखा था जब समय परीक्षा चल रही थी, एसटीएफ की कार्रवाई हुई थी, क्योंकि ये गैंग काफी ज्यादा सशक्त था उत्तर प्रदेश में। इस पर कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ लगाई गई है और इसके पीछे जो भी लोग हैं, इसके पीछे सिलसिलेवार उस पूरे जो है इस गैंग को खत्म करने के लिए आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जब ये परीक्षा लीक की बात सामने आई थी तो कहीं ना कहीं जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी उन छात्रों का ये कहना था कि इसे रद्द किया जाना चाहिए और अब ये रद्द हो चुकी है, तो जो छात्र छात्राएं हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी, छात्र छात्राएं इस बात से बिल्कुल काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिन लोगों ने मेहनत की है वो ना करके ऐसे लोग जो किसी गैर पैसे के दम पे या किसी तरीके से सफल हो जाए, ऐसे लोगों को परीक्षा में बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परीक्षार्थी ये चाहता है कि जो मेहनत कश लोग हैं जिन्होंने परिश्रम किया है उनको उनके परिश्रम का फल मिले। और अगर प्रश्न उठ रहे थे, अगर पेपर लीक की बात की जा रही थी, तो जो लोगों ने पेपर लीक करके जो है कह रहे हैं जिन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया उन लोगों को फायदा ना पहुंचे, और जो छात्र भी उसमें शामिल थे और जो गैंग उसमें शामिल था उन सभी लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद ही जरूरी होता है कि हर परीक्षार्थी, हर छात्र, हर युवा को एक ऐसा मौका, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां उसकी मेहनत के दम पर उसको सफलता हासिल हो। ये नहीं कि जो है करे पेपर लीक या किसी भी तरीके से कदम उठाकर कि मतलब करके आप जो है पेपर लीक करके किसी परीक्षा में सफल अगर होते हैं तो सफल होने के बाद समाज में आप क्या देंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वही व्यक्ति सफल होना चाहिए, उसी को नौकरी मिलनी चाहिए जो अपनी बड़ी मेहनत से जिसने परीक्षा के लिए तैयारी की है और उसमें सफल होता है। छात्र इस बात से काफी ज्यादा उनको संतुष्टि मिली है कि जिन लोगों ने इसको किया था परिवार पेपर। जी विकास, क्या जी चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि जिन लोगों की वजह से ये परीक्षा लीक हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगले 6 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भर्ती परीक्षा जो थी फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां पर कई सारे जो छात्र हैं वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि हम इतनी मेहनत करके परीक्षा देते हैं लेकिन उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है, हमारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। लेकिन उन तमाम मेहनत और छात्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं और इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी। फिलहाल परीक्षा रद्द होने के बाद में अब ये भी आदेश दिए गए हैं कि आखिर किन वजहों में और ऐसे कौन सा वो पूरा गैंग है, कौन से वो माफिया है जिनकी वजह से ये परीक्षा लीक हुई थी। क्योंकि हमने कई सारे तस्वीरें भी देखी थी जहां व्हाट्सएप चैट में पूरा एक पेटीएम का कोड भी था और उसमें डिमांड की जा रही थी छात्रों से कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका इतना अमाउंट आप इस पेटीएम पे QR कोड के जरिए स्कैन करके भेजिए, आपको पूरा एग्जाम का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा। तमाम हमने स्क्रीनशॉट्स देखे थे। लेकिन अब उसके बाद में ये बड़ा फैसला इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और इस भर्ती परीक्षा को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है और अब अगले 6 महीने के अंदर इससे परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। साथ ही इस पर भी पूरी जांच की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी अपराधियों के खिलाफ। इसी के साथ चलिए अब अगली खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इन परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में NTPC के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को राष्ट्र को आज समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इसके 1600 मेगावाट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी।
कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली व्यवस्था सुधारने में ये बेहद और बड़ा अहम कदम है। वहीं प्रधानमंत्री ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनसे कोयले की तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल मशीनीकृत निकासी में मदद मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार के कामों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने चुनाव में दी गई गारंटी तेजी से लागू कर दी है। पीएम ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले जो पैसा लूट लिया जाता था, आज वो गरीब कल्याण के काम आ रहा है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का वो बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र से भेजे गए 1 रुपये में से 15 पैसे ही पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए इसमें से 29 लाख करोड़ रुपए चबा जाते। 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। आज ये भाजपा सरकार है जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया है, उसका अधिकार दिलाया है। इसके बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के मन में केवल सरकार बनाना रहा है, देश को आगे बढ़ाना कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। संत रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविदास जी को नमन करते हुए लिखा
कि गुरु रविदास जयंती पर उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। इस अवसर पर देश भर के अपने परिवारजनों को ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि समानता और समता पर आधारित उनका संदेश समाज की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है और ये वीडियो आपको दिखाते हैं। जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रविदास जात कर रोग। अर्थात सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। रविदास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है उससे कोई प्रेम नहीं करता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्रों से जुड़ी कई और बड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी आज शुभारंभ किया। ये पहल केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप है। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। पीएम ने कहा कि अब इस क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना शुरू होने से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार ने भी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को निरस्त कर दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है।
वहीं कैबिनेट मंत्री जयंत मल बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। वहीं निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया है और इस कानून के तहत अब विवाह और तलाक का पंजीकरण नहीं होगा। 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को एक मुश्त मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी की एक बैठक भाजपा मुख्यालय पर बुलाई। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी को खास तौर पर बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। अभी सूत्रों के अनुसार सभी राज्य चुनाव प्रभारियों को सरकारी अभियानों और योजनाओं पर एक रिपोर्ट लाने के लिए भी कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार सीट का मंत्र पीएम मोदी ने दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बार भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में गई, जबकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। और साथ ही इस गठबंधन की घोषणा के साथ ही नाराजगी की खबरें भी अब कहीं ना कहीं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने पर निराशा जताई है। तो वहीं दिल्ली में हुए इस गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक दुख भरी खबर सामने आई, जहां पर पटियाली दरियागंज मार्ग पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिसकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। जानकारी के मुताबिक मृतकों में ट्रॉली में सवार 7 बच्चे और 8 महिला श्रद्धालु शामिल हैं। कई गंभीर घायल श्रद्धालुओं का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और कुछ को रेफर भी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। जनपद कासगंज में हुए सड़क हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके निःशुल्क समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।
एटा से ट्रॉली में श्रद्धालु इधर आ रहे थे और इंसिडेंटली यहाँ पे उनकी ट्रॉली पलट गई और लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे। मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये शासन। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की, जहां पर इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी सरकार अब लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज भी संदेशखाली के लिए रवाना हुई। एनएचआरसी की टीम ने बीते कल भी संदेशखाली का दौरा किया था। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है। लेखक शिशिर गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के कारण वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत का उत्थान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्नत हथियारों के स्वदेशी उत्पादन से लेकर निर्यात क्षमताओं के विस्तार तक परिणाम काफी आशाजनक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नजरिया देश के भविष्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। शिशिर गुप्ता ने अपने लेख में कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई पीआईएल योजना से काफी निवेश बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपीए के शासनकाल में ये निवेश 686 करोड़ डॉलर था, जिसमें 10 साल के भीतर 23 गुना की वृद्धि हुई है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।